الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. ایمان والی بہنوں، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ سب سرکار کی شان پر ہم قربان ہو جائیں. شاعر کہتا ہے جدو ماں پڑھتی قرآن ہائی پتر جمدئی باہو سلطان. جس وقت ماں پڑھتی قرآن ہائی پتر جمدئی باہو سلطان ہائی. جے والے ماں پڑھتی سورت زلزال ہائی پتر جمدئی پیر سیال ہائی. جے والے ماں پڑھتی سورت فلق ہائی پتر جمدئی بہاؤ الحق ہائی. تو پتہ چلا ایمان والی میری بہنوں، ماں دی گو دے دستگاہ پہلی اتھو زندگی دا رزق العین بندا ہے. اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے. شرم و حیا والی ماں ہوے تو بیٹا بھی غوث سکلین بندا ہے. سیدہ فاطمہ جے ماں ہوے تو بیٹا بھی حسین بندا ہے. جو حسین جے ماں سیدہ فاطمہ ہوے تو بیٹا بھی سخی حسین بندا ہے. جے ماں ام الخیر ہے تو پتر غوث سکلین ہے. چلیا میری ایمان والی میری بہن، یاد رکھو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھیے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، پھر بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اگر چاہتی ہے یہاں سے اٹھے ہماری تقدیریں بدل جائیں، دعائیں قبول ہو جائیں تو محبت سے نہ بولیں گے سبحان اللہ، بہت غور سے سنیں گی. جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے آج انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گی. میں بس سرکار کی ایال والوں کی باتیں آپ کو سناؤں گی اور کچھ دادا کے گھر کی باتیں سناؤں گی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان کے گھر کی گفتگو کرتے ہیں. تو وہ سرکار کی شان سننے والوں، آپ کے نانا جان بھی شان والے تھے، آپ کی دادا جان بھی شان والے تھے. آپ کے نانا کی دربار کے اندر ایک عورت آتی ہے سبحان اللہ، کہتی ہے اللہ کے پیارے ولی، اللہ کے پیارے ولی میرا بیٹا بڑا بیمار ہے. جان کی بارگاہ میں وہ عورت آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے ولی میرا بچہ بڑا بیمار ہے اور میں بڑی پریشان ہوں. سنا ہے آپ کے دربار میں کوئی بی بی آئے تو جھولیاں بھر کے جاتے اور میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، دعا کر دیجئے. آپ نے آنکھیں بند کر لی. نانا جان نے سرکار کے نانا جان نے آنکھیں بند کر لی. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، فرمایا اے بی بی تیرے بچے کی زندگی ختم ہے، میں نے لوہے محفوظ پر دیکھا ہے اس کی زندگی ختم ہے. اے میری بی بی اس بچے کو گھر لے کے جا سکتی ہے. بی بی نے کپڑا ہٹایا تو بچے کی روح پرواز ہو چکی تھی. اللہ اکبر. اس عورت نے اب ہتا کہ روتی ہوئی واپس قدم اٹھایا، کچھ آگے 4 سال کا بچہ کھیلتا نظر آ رہا تھا. 4 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے مائی کیوں روتی ہے، اما جان کیوں رو رہی ہے؟ یہ وہ دربار ہے میرے نانا کا دربار، یہ وہ ہے جہاں کوئی بھی آئے روتا ہوا آتا ہے، ہنستا واپس جاتا ہے. اس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولے کہ سبحان اللہ. آواز نہیں آئی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. پتہ چلے سب حضور کے غلام آئے ہیں. یہ وہ ولی اللہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے. تو وہ عورت کہتی ہے میں جانے لگی، کچھ قدم اٹھائے آگے 4 سال کا بچہ پوچھتا ہے اے بی بی جان یہاں کوئی بھی خالی آئے، کوئی بھی روتا ہوا آئے واپس مسکراتا جاتا ہے، لیکن تو روتی ہوئی آئی ہے اور روتی ہوئی واپس جا رہی ہے، راز کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اے بچے کیا بتاؤں،
बस मेरा बच्चा बड़ा बीमार था, किसी ने बताया था तेरे नाना के दरबार में आई थी, यहाँ बाबा जी के पास हुजरे में गई हूँ, उसने कहा बच्चे की जिंदगी खत्म है। उसी वक्त मेरे बच्चे की रूह परवाज हो गई है, इसलिए रो रही हूँ। अल्लाह ने अता कि यहाँ से दुनिया से मेरा बेटा आज चला गया है, कैसे बर्दाश्त करूँ। तो आपने फरमाया कि ए माई रोना नहीं, अम्मा जान तू जाके उस बाबा से कह कि अगर मेरे बच्चे की जिंदगी नहीं है तो मैं तुम्हारे दरबार में क्यों आई थी, अगर मेरे बच्चे की जिंदगी नहीं थी तो फिर मैं तुम्हारे दरबार में क्या करने आई थी, अगर मैं आई थी तो मुझे खाली नहीं भेजना और बाबा जी से जाकर पैगाम भी दे दे और माई तू परेशान ना हो, तेरा बच्चा तो खेल रहा है। गौस आज़म सरकार ने फरमाया माई परेशान ना हो, देख तेरा बच्चा तो खेल रहा है। वो औरत कहती है मैंने कपड़ा हटाया, देखा कि मेरी गोद के अंदर बच्चा हंसता खेलता नजर आ रहा। औरत ने क्या कहा, मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा, कपड़ा हटाया तो बच्चा खेलता नजर आ रहा है। माई बड़ी हैरान है, कुछ लम्हे पहले बच्चे की रूह परवाज हो गई, अब मेरा बच्चा जिंदा हो गया। वो औरत दौड़ती हुई फिर वली के पास पहुंची, कहती है बाबा जान आपने कहा था तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खत्म है, देखो मेरा बच्चा तो खेल रहा है, मेरा बच्चा तो जिंदा हो गया है, मेरा बच्चा तो खेलता नजर आ रहा है। आपने कहा था इसकी जिंदगी नहीं है, लेकिन वो सजम सरकार के नाना जान ने फरमाया ए माई जरा सच बता, मुझे बता कि तू यहाँ से निकली थी, तेरे बच्चा तो फोत हो चुका था, तूने किया क्या है, किसके पास गई थी, कहाँ लेकर गई हो, तूने यहाँ से निकल कर क्या किया है। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के वली मैंने और तो कुछ नहीं किया, बस 4 साल का बच्चा था, उसने कहा तेरा बच्चा खेल रहा है, मैंने कपड़ा हटाया तो मेरा बच्चा जिंदा हो गया, मेरा बच्चा खेलता हुआ मिल गया है। तो नाना जान उस आज़म सरकार के नाना जान समझ गए कि और किसी का काम नहीं, मेरे नवासे का ही काम हो सकता है। आपने छड़ी उठाई, आपने वहां से छड़ी उठा के ना आप उसके पीछे दौड़ना शुरू हो गए। नवासा दौड़ता रहा, नाना पीछे से दौड़ता रहा। नवासे ने कहा लोगों मुझे बचाओ, मेरा नाना मुझे मारने आ रहा है। लोगों से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान में पहुंच आया, जाकर के कहा ए मुर्दा मुझे कोई तो बचा लो, मेरा नाना छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रहा है। उलमा कराम लिखते हैं वहां कब्रों से मुर्दे जिंदा होकर मुस्लिम सरकार को बचाने आ गए, कब्रों से मुर्दे जिंदा होकर आज़म सरकार को बचाने के लिए निकल आए। अल्लाह अकबर। अब नाना जान ने फेंक कर कहा बच्चे ए मेरे नवासे गौसे आज़म सरकार, मैं तुझे तकलीफ पहुंचाने मारने के लिए नहीं आया था तेरे पीछे, इसलिए कहने आया था इतनी छोटी उम्र में अल्लाह के बड़े राज जाहिर नहीं किया करते, अल्लाह के इतने बड़े राजों को छोटी उम्र में जाहिर नहीं किया करते। बस मेरे बच्चे इस राज पे अभी पर्दा डाले रखो, भी बच्चे हो तो पता चला आपके नाना जान भी बड़ी शान वाले और आपके दादा जान भी बड़ी शान वाले थे, क्योंकि आपके ईमान वाली मेरी बहनों दादा जान की शान पर अगर देखते हैं तो वहाँ उस मोहल्ले के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, लोग बड़े परेशान थे। पता चला कि हत्ता के ननियार की तरफ से सैयद है और दादियाल की तरफ से भी सैयद है। सुभान अल्लाह। आपके दादा जान के घर में लोग जमा होकर आकर कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही, लोग बड़े परेशान हैं, लोग मर रहे हैं। आपकी उन्होंने ज़हन में ख्याल आया कि ऐसा करते हैं यहाँ एक सैयदजादे का घर है। पता चला ईमान के हत्ता के लोग जमा होकर जो आए थे वो सजम सरकार की फुफो जान के घर कहते हैं बारिश नहीं हो रही, अल्लाह वाली हो सैयदजादी हो दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं जल्दी सुनता है, अल्लाह बारिश बरसा दे, अल्लाह बारिश बरसा दे। उस बीबी ने घर में झाड़ू उठा लिया। अब बहुत गौर करने का यहाँ जुमला है, बीबी से लोग दरवाजे पे खड़े हैं कि दुआ कीजिए बारिश आए, पर बहन ने झाड़ू उठा लिया, घर की सफाई करना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। लोग बड़े हैरान हैं, कहते हैं ए बीबी हम दुआ करवाने के लिए आए थे पर तूने घर की सफाइयां करना शुरू कर दी है, हम बारिश के लिए परेशान हैं पर तूने घर के कामों में झाड़ू उठा के झाड़ू करना शुरू कर दिया है। आपने फरमाया ऐ लोगों देखना, आपने जिस झाड़ू लगाया मुसल्ला बिछाया दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह झाड़ू मैंने लगाया है। क्या कहा? अल्लाह झाड़ू मैंने लगा दिया है, बदलों को भेज कर छिड़काओ आप कर दो। तो पता चला अभी लोग घर नहीं पहुंचे थे, अल्लाह ने बारिश बरसा।
वजह क्या है? हमें मांगने का तरीका नहीं है। बीबी ने मुसल्ला बिछाया था, अभी दुआ के लिए हाथ उठाए थे, उठाए अल्लाह ने बारिश बरसा दी है। वजह क्या है? हमें मांगना नहीं आता, फिर परेशान होते हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। चले पता चलता कि जो जिम्मा लगाया था, जिनकी दान के का दाता वालों का मैंने जिक्र किया है। अब चलते हैं वो सरकार की शहादत की करामत बयान करते हैं इंशाअल्लाह। आप पैदा हुए ईमान वाली मेरी बहनों, याद रखना आप इस कदर शान वाले कि 4 साल की उम्र थी आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको होता के दीन के लिए सीखने के लिए मुदर्से में जब भेजने लगी तो आपने 40 दिरहम कमीज के अंदर सिलाई कर दिए और फरमाया मेरे बच्चे कभी मुश्किल वक्त आए, कभी अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए तो इन पैसों को कहाँ इस्तेमाल कर लेना। वो जब सरकार 40 दिरहम जो अंदर सिलाई किए हुए थे वो लेकर जा रहे थे काफले के साथ कि अचानक डाकुओं का काफला आ गया आगे से लूटने के लिए। उन्होंने बाकी सबको लूटा, पूछा बच्चे तेरे पास कुछ है? आपने फरमाया जी मेरे पास भी 40 दिरहम है और फलां जगह पे है। डाकू जो बड़ा सरदार था बड़ा हैरान होकर पूछता है बच्चे तू झूठ बोल लेता, तेरे पैसे बच जाते, तू झूठ बोल लेता, तेरी जान को खतरा ना पहुंचता। आपने फरमाया मैं झूठ बोलता मेरी जान बच जाती, मेरे पैसे बच जाते, पर मेरा ईमान सलामत नहीं रहना था, मेरा ईमान नहीं बचना था। इसलिए मैंने सच बताया है क्योंकि मेरी माँ ने मेरी वसीयत की थी, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी बच्चे जान चली जाए जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। तो पता चला डाकुओं का बड़ा सरदार कहने लगा अरे मासूम सा बच्चा होकर तू माँ की नाफरमानी नहीं कर रहा, तो मैं इतना बड़ा डाकू बनकर अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा हूँ। तो बच्चे मैं अता के तौबा करता हूँ। जब सरदार ने तौबा की बाकी भी सब डाकुओं ने तौबा की, पता चला 4 साल की उम्र को तौबा करवा रहे हैं। जब माँ ऐसी है, माँ पैसा है तो बच्चा भी ऐसी शान वाला पैदा होता है। जब आपने मुदरसे में तालीम हासिल कर ली, आज अपने फिर मुदरसा अपना बनवाया, बहुत बड़ा मुदरस बनवाया। उलमा कराम लिखते हैं आपकी करामतें आपकी शान का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके बयान के अंदर 70 हज़ार का मजमा होया करता है। इस कदर बात बयान किया करते थे कि 70 हज़ार का मजमा जमा हुआ करता था और जब बयान कर लेते थे फिर हमारे से वो गिनती नहीं होती थी कि कई 70 मुर्दे हत्ता की 5 जनाजे उठाने पड़ते थे। बयान सुनकर कलेजे फट जाया करते थे और उनकी गिनती उनका शुमार हम नहीं कर सकते थे जो वहाँ बैठ कर तौबा कर लिया करते थे। 70 हज़ार में से गिनती नहीं होती थी कि सच्ची तौबा कर जाते थे। आपके बयान में इतना असर था कि आपके मुदरसे के अंदर औरत आई कहती है अल्लाह के वली मेरे दिल की ख्वाहिश है मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। आज हम सोचती हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, पुलिस अफसर बने, इंजीनियर बने, फौजी बने, नहीं साथ ये भी शौक रखा करो हमारे बच्चे हाफिज कुरान बने, हमारे बच्चे हाफिज कुरान बने। अब उस औरत ने कहा अल्लाह के वली मेरा दिल चाहता है मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। आपने फरमाया जहाँ बाकी बच्चे बैठे हैं बिठाओ, इसकी किस्मत में है तो हाफिज कुरान बन जाए। और अब छोड़कर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद उसका दिल बड़ा उदास हुआ कि मैं अपने लाडले को जरा मिल के आती हूँ। माँ का बड़ा वो बच्चा लाडला था। अब उसने देसी घी के पेड़े बनाए, चूड़ियाँ बनाई, अपने बच्चे को मिलने के लिए मुदरसे में आई। आकर के देखा कि बच्चा सूखी रोटी और दाल में डबो डबो के खा रहा है और अंदर जब उस माई ने देखा अपने बच्चे की हालत के बच्चा कमजोर हो चुका है, पहले से सूख चुका है, माई से बर्दाश्त न हुआ। अरे मेरे लाडले की ये हालत है। यहाँ मुदरसे के अंदर हुजरे के अंदर गई, जाके देखा वो बाबा जी खुद मुर्गे से खाना खा रहे हैं। अब माई का गुस्सा जो था वो डबल हो गया। लो मेरा बच्चा दाल से सूखी रोटी और बाबा खुद अंदर बैठ के मुर्गे से खाना खा रहा है। जब माई ने इतनी सी बात की कि बाबा जी मेरे बच्चे की हालत क्या हो चुकी है, इतना कमजोर हो चुका है और वो ऐसे सूखी रोटी दालों के साथ खाता है, आप खुद मुर्गे से खाना खा रहे हैं, तो आपने उंगली का इशारा फरमाया जैसे खाने से खाना खा रहे थे, उस प्लेट की तरफ उंगली का इशारा किया। तो उलमा कराम लिखते हैं वही मुर्गा खड़ा होकर अजान देने लगा।
मुर्गा जिंदा होकर अजान देने लग गया। आपने फरमाया माई परेशान न हो, ऐ मेरी बहन, जब तेरा बच्चा इस काबिल बनेगा फिर बेशक वो मुर्गे खाया करे, बेशक दाल खाया करेगा। तो पता चला ईमान वाली मेरी बहनों, आज हम सिर्फ ये शौक रखती है, लेकिन हाफिज़े कुरान के माँ बाप को अल्लाह सोने का ताज अता फरमाएगा। यहाँ कीमती लिबास पहनती हो, बड़ा नाज करती है, अरे हमने बड़ा कीमती लिबास पहना हुआ है, अरे वहाँ कितना नाज करोगी जब अल्लाह जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। वहाँ कितना नाज करोगी जब अल्लाह जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। तो मेरी ईमान वाली बहनों, पता चला अल्लाह वालों की निस्बत में आकर के देखो, जब अल्लाह वालों से नजरें मिलती हैं क्यों मारे मारे फिरते हो, इसी अहले अल्लाह से मिल लो, जब उनसे नजरें मिलती हैं में खार हंसी हो जाते हैं, फिर में खार हंसी हो जाते हैं। तो पता चला ईमान वाली मेरी बहनों, मुअज़्ज़म सरकार जब उनका धोबी दुनिया से गया, फोत हो गया, धोबी जो कपड़े धोता था, अब उसकी कब्र में आए फरिश्ते, कहते हैं मन रब्बुका नबीयुका मंदीनुका। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा फरिश्तों, मुअज़्ज़म सरकार का धोबी आया। फरिश्तों ने फिर सवाल किया मन रब्बुका नबीयुका। उसने कहा जानते हो मैं कौन हूँ? मुअज़्ज़म सरकार का धोबी हूँ। फरिश्तों ने अपना फिर सवाल पूछा। उसने तीसरी बार कहा मैं मुअज़्ज़म सरकार का धोबी हूँ। अल्लाह से आवाज आई, अर्श से आवाज आई, मुनकर नकीर इससे क्या पूछते हो, ये तो जिंदगी भर मेरे बोझ के कपड़े धो के आए। जाओ, जिसने मेरे बोझ के कपड़े धोए मैंने इसकी बख्शिश करवा दी है। पता चला ये अल्लाह वालों की सोहबत में आकर बैठा करो, ये जिनका जिक्र मेरे रब ने कुरान में फरमाया असहाबे कहफ का, जब वो लोग जाने लगे तो कुत्ता भी साथ जाने लगा। उन्होंने कहा कि कुत्ते तेरा क्या काम है, तू वहाँ भौंकेगा, शोर मचाएगा, हमें साथ पकड़े जाएंगे। उस कुत्ते ने कहा अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि ना मैं भौंका, ना मैं टोंका, ना मैं शोर मचावा, नेक बदियां की सोहबत अंदर बता मैं भी बख्शिया जाऊँ, बता मैं भी बख्शिया जावा। अब उस अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र भी कुरान में कैसे किया कि क़यामत के रोज हम उसको भी इंसानी शक्ल देकर जन्नत अता फरमाएंगे। ईमान वाली मेरी बहनों, पता चला कि अल्लाह वालों की निस्बत में आकर तो देखो अल्लाह कैसे बड़े पार करता है।